Hello everyone, welcome to my YouTube channel Equation Essence. This is Ifra and I hope you all are doing good. Today we will start exercise 12.1. We have done our introductory part जिसमें मैंने आपको different graphs बनाने सिखाए थे, bar graph और histogram and last is frequency polygon. और अब उन सारे ग्राफ को हम किस तरीके से क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट करें वो हम आपको आज सिखाएंगे. तो let's start with question number 1. Though questions are very long, so I'll dictate you question and I'll make a table here और आपको मेरे ही पेज पे साइड में क्वेश्चन दिख जाएगा. So let's start with question number 1. A survey conducted by an organization for the cause of illnesses and death among the women between the ages 15 to 44 years worldwide found the following figures in percentage. क्या दिए हुए आपको कॉजेज दिए हुए और फीमेल फर्टिलिटी रेट दिया हुआ है. रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 31.8%, न्यूरोसाइकाट्रिक 25.4, इंजरीज 12.4, कार्डियोवास्कुलर 4.3, respiratory 4.1 and other 22.0. Represent the information giving above graphically. Which condition is a major cause of women's ill health and death worldwide? Try to find out with the help of a teacher any two factors which play an important role in the cause in second above being the major cause. Graphically हम आपको अभी बताते हैं. Second का आंसर क्या है? Which condition is a major cause of women's ill health and death worldwide? सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा reproductive health है जो major cause है. And third है apart from the reproductive health, which two causes are the major causes? तो neuropsychiatric and other. So let's make first the graph here, then we will do second and third. ग्राफ बनाने के लिए क्योंकि हमारा डेटा बहुत है तो हम इसे कर देते हैं. एक जगह हम लिखेंगे कॉजेज और दूसरी जगह फर्टिलिटी रेट. तो कॉजेज अगर हम यहाँ लिख दें और फर्टिलिटी रेट यहाँ पर, कॉजेज इधर, फर्टिलिटी रेट ऊपर. अब क्योंकि हमारी जो है वो वैल्यू 4 से स्टार्ट हो रही है, लेट्स स्टार्ट विद 0 2 4 6 8 10 11 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34. ग्राफ पेपर पे हमेशा ये बनेगा क्योंकि हमारे पास अभी ग्राफ पेपर नहीं है, हमारा बोर्ड अभी वैसा नहीं है, इसलिए मैं इसे एक रफली ग्राफ बना रही हूँ आपके लिए. लेकिन आप हमेशा ग्राफ पेपर में बनाएगा. इक्वल आपके बीच में गैप होना चाहिए जिससे हमारी वैल्यू की एक्यूरेसी सही रहे. सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक बार है 31.8 विच इज समहाउ हियर. तो हम उसका एक बार बना लेते हैं. यहीं पर अगर या तो हम ऊपर इसके अंदर लिख दें reproductive health. Second is our neuropsychiatric, which is 25.4 somehow here. Neuropsychiatric. Third is injuries, which is 12.4.
Fourth is cardiovascular, which is 4.3. यहाँ लिख दे से cardiovascular. Fifth is respiratory, which is 4.1. And last is other, which is 22. So this is the bar graph of this table. Our second question is, which is the major cause? So the major cause is reproductive health condition. So this is our first question. Now move on to the second question. Question number 2 is the different following data on the number of girls to the nearest 10 per thousand boys in a different section of Indian society is given. क्या दिया हुआ है? SC, non-SC, ST, backward districts, non-backward district, rural and urban. Number of girls per boys. Number of boys 10,000 है, सॉरी नंबर ऑफ बॉयज 1000 है पर 1000. उसके हिसाब से नंबर ऑफ गर्ल्स का जो डेटा दिया हुआ है वही दिया हुआ है 940, 970, 920, 950, 920, 930 and 910. What is our first part? Our first part is represent the information above by a bar graph. हमें इसे बार ग्राफ में बनाना है. सबसे पहले थे in a classroom discuss what conclusion can be arrived at from the graph. Conclusion क्या दिख रहा है? Conclusion ये दिख रहा है हमें कि number of girls is less than the number of boys. ठीक है, conclusion तो ये है. ग्राफ हम बनाते हैं. नंबर ऑफ गर्ल्स पर बॉयज यहाँ लिख देते हैं. एंड सेक्शन यहाँ. सबसे पहले देखिए वैल्यूज जो है वो 900 से ज्यादा हो रही हैं, तो हम स्टार्टिंग ही यहाँ पे 900 ले लें. देन 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990. सबसे पहले देखिए, सबसे पहली SC है. SC की वैल्यू क्या है? 940. तो let's draw a graph here which is अंदर हम ग्राफ बार ग्राफ हमें बनाना है. पहले हमने ऐसा बार बना दिया. 940 जो SC का सेक्शन है. नेक्स्ट इज ST की वैल्यू 970 है. Then next is non-SC ST which is 920. Next is backward districts which is 950. Next is rural
that is 930. Next is urban, which is 910. So this is your bar graph of question number 2. Now let's move on to question number 3. Question number 3 is, given are seats won by different political parties in the polling outcome of a state assembly election. Here are the political parties A, B, C, D, E, F, and here are the seats that are won by the respective parties. A ने 75 seats जीती है, B ने 55, C ने 37, D ने 29, E ने 10, F ने 37. Draw a bar graph to represent the polling result. We will draw a bar graph which is very simple. The second part is which political party won the maximum number of seats. So maximum number of seats is won by political party A. So firstly, let us draw the bar graph of this data, then we'll do the second part. Seats won in the y-axis and political parties in the x-axis. Five, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75. 5 का अगर हमने डिफरेंस ले लिया है, now let's start with the graph. Political party A has won 75. तो हमें एक बार ग्राफ बनाना पड़ेगा 75 तक का. किसका है ये हमारा? ए पार्टी का है. बी का 55 है. सी का 37. डी का 29. ई का 10. एंड एफ का 37. So this is your graph. Now the second part is which political party won the seat. So political party A has won the seat. So this is your question number 3. Move on to question number 4. Question number 4 is the length of 40 leaves of a plant are measured correct to 1 millimeter and the obtained data is represented in the following table.
Length 118 to 126, number of leaves 3. 127 to 135, number of leaves 5. 136 to 144, number of leaves are 9. 145 to 153, number of leaves 12. 154 to 162, number of leaves 5. 163 to 171, number of leaves 4. And 172 to 180, number of leaves are 2. There are total 40 leaves जिसमें different length की leaves थी हमारी. Question number first is draw a histogram to represent the giving data. Bracket में hint दे रखा है. First make the class interval कॉन्टिन्यूस. कॉन्टिन्यूस का मतलब है, मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी बताया था कि क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूस होना चाहिए. मतलब इसकी जो अपर लिमिट है फर्स्ट वाले की और जो सेकंड वाले की लोअर लिमिट है वो एक जैसी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है हिस्टोग्राम में ना बीच में गैप नहीं आता. दोनों बार्स के दोनों बार्स एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, तो इसके लिए हमें ये दोनों इंटरवल्स को बराबर करना पड़ेगा. सेकेंड इज देयर एनी सुटेबल Is there any other suitable graphical representation for the same data? And the third is it correct to conclude that the maximum number of leaves are 153 millimeter long? Why? So firstly, let us make the class interval continuous. क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूस कैसे बनाएंगे हम यहाँ पर एक और सेक्शन बना देते हैं. अब देखिए, इसको कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए आपको जो लोअर नीचे वाला इंटरवल की अपर लिमिट है और फर्स्ट वाले इंटरवल की लोअर लिमिट है, तो 127 माइनस 126 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 0.5. अब जो 0.5 है ये लोअर लिमिट से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, एंड अपर लिमिट से भी क्या होगा, ऐड होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है हमारा 8 है, तो हमें उसे 8 ही रखना है, 8 से ज्यादा नहीं करना है. तो न्यू इंटरवल क्या हो जाएगा, 0.5 इसमें से माइनस करेंगे और उसमें हम 0.5 को ऐड कर देंगे. सेम इसी में 0.5 को हम माइनस करेंगे एंड 0.5 को हम ऐड कर देंगे. 0.5 को हम माइनस करेंगे, 0.5 को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे. 0.5 को हम माइनस करेंगे एंड 0.5 को हम ऐड कर देंगे. तो ये हमारा न्यू क्लास इंटरवल आ गया. अब हम इस क्लास इंटरवल से ग्राफ बनाएंगे अपना. यहाँ पे हम लिख देते हैं न्यू सी आई इज क्लास इंटरवल. और लेट्स मेक ग्राफ. कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 117.5 से 126.5 पे. तो ऐसी ग्राफ इसी में बनाएंगे. 171 117.5 126.5 135.5 144.5 153.5 162.5 171.5 180.5. यहाँ वैल्यू हम ले लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. ओके. फर्स्ट हमारे क्या है, 117.5 से 126.5 तक हमारी नंबर ऑफ लीव्स हैं 3. नंबर ऑफ लीव्स हमारी क्या है, 3 है. तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा. 126 से 135.5 तक 5 है, तो हमारा ग्राफ 4 और 6 के बीच में आ जाएगा 5.
135.5 से 144.5 तक 9 है हमारा, तो ये ऐसे 9 बन जाएगा। नेक्स्ट इज 144.5 टू 153.5 में हमारा 12 है। 12 ये बन गया। 153.5 से 162.5 तक 5 है हमारा। नेक्स्ट इज 162.5 से 4 है। नेक्स्ट 171.5 से 180.5 तक 2 है। So this is our histogram of this data. सबसे पहले हमने क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूस करा, कॉन्टिन्यूस करके हमने ग्राफ बना दिया। और सेकेंड पार्ट इज देयर एनी सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा। और हमने इंट्रोडक्टरी वाली वीडियो में देखा था कि अगर हम किसी भी डेटा का हिस्टोग्राम बना सकते हैं तो हम उसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं। कैसे? हम उनके बीच वाले को डॉट डॉट लगाकर और उसे हम ज्वाइन कर लें। तो यस, सेकंड, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा है यस, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। थर्ड is it correct to conclude that the maximum number of leaves are 153 millimeter long? Why? 153 millimeter long में सबसे ज्यादा हमारी leaves हैं क्योंकि ये हमारा highest point है। So yes. So this is your question number 4. Now move on to question number 5. Question number 5 is the following table gives the lifetimes of 400 neon lamps. 400 neon lamps है टोटल, उनके लाइफ टाइम में नार्स ये दे रखे हैं। 14 लैम्प्स के 300 टू 400, 56 लैम्प के 400 टू 500, 60 लैम्प्स के 500 टू 600, 86 लैम्प्स के 600 टू 700, 74 लैम्प्स के 700 टू 800, 62 लैम्प्स के 800 टू 900, 48 लैम्प्स के 900 टू 1000. Represent the given information with the help of histogram. How many lamps have a lifetime of more than 700 hours? तो firstly हम first वाला part करते हैं, which is represent the given information with the help of histogram. यहाँ पे क्योंकि क्लास इंटरवल हमारी कॉन्टिन्यूस दे रखी है तो मैं कॉन्टिन्यूस बनाने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट कर लेते हैं। दिस इज 300, नेक्स्ट 400, 5, 6, 7, 8, 9 and 1000. नंबर ऑफ लैम्प्स कैसे दिए हुए हमें? अगर हम 4 का 10 लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 300 to 400 हमारे 14 है। 400 to 500 हमारा 56 है। 500 to 600 हमारा 60 है। 600 to 700 हमारा 86 है। 700 to 800 हमारा 74 है। 800 to 900 62 and 900 to 1000 48.
So this is our histogram of the number of lamps with their respective life. इसका स्केल हमें बना लेते हैं, हमने नहीं बनाया. Number of lamps, you can write here number of lamps. यहाँ पे आप लिखिए लाइफ टाइम in hours. So this is your first part. Now moving on to the second part. 700 से ज्यादा जिसका लाइफ टाइम में हमें वो टोटल नंबर ऑफ लैम्प्स बताने हैं. So second part is number of lamps having lifetime more than 700. 700 से ज़्यादा which is equals to 74 plus 62 plus 48. 8, 10, 14, 5, 11, 184 lamps. Now this is your question number 5. Now move on to question number 6. Question number 6 is the following table gives the distribution of students of two sections according to the marks obtained by them. दो sections हैं, section A, section B. उसमें number of marks per student हमें दे रखा है. जैसे 0 से 10 3, 10 to 29, 20 to 30 17, 30 to 40 12, 40 to 50 9. सेक्शन ए का ये है, सेक्शन बी का ये है. हमें रिप्रेजेंट करना है marks of the students of both the sections on the same graph by two frequency polygon. टू frequency polygon एक ही ग्राफ में हमें बनानी है और उन दोनों polygon से हमें उनका क्या बताना है, कंपेयर करनी है दोनों क्लास की परफॉर्मेंस को. ओके तो इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये हमारा क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्लास इंटरवल की जरूरत नहीं होती, हमें क्लास मार्क की जरूरत होती है विच इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल. तो हम यहाँ पर एक और सेक्शन बनाते हैं जिसका है हमारा क्लास मार्क. क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी हमारी सेम है तो क्लास मार्क दोनों का सेम होगा विच इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. सो क्लास मार्क इज अपर limit plus lower limit by 2. इसका क्लास मार्क हमारा क्या होगा 5, इसका 15, इसका 25, 35 एंड लास्ट इज 45. क्लास मार्क हमारा आ गया है, फ्रीक्वेंसी हमारी आ गई है. अब हमें बनाना है पॉलीगन. तो पॉलीगन में हम ऐसे रख लें 5, 10, 15 या 5, 15, 25, 35 एंड लास्ट इज 45. यहाँ पर अगर हम 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. तो फर्स्ट हमारे सेक्शन ए को हम ब्लैक पेन से बनाएंगे, सेक्शन बी को हम ब्लू पेन से बनाएंगे. 0 से 10 विच इज 5 पे हमारी 3 आएगी. 15 पे हमारी क्या आ रही है 9 आ रही है. 15 पे हमारी 9. 25 पे हमारी 17 आ रही है. 35 पे हमारी 12. 45 पे हमारी 9. So this is your graph. सेक्शन ए. सेक्शन बी अगर हम करें 5 पे हमारा 5 आ रही है फ्रीक्वेंसी. 15 पे हमारी आ रही है 19.
25 पे हमारी आ रही है 15, 35 पे हमारी आ रही है 10 एंड 45 पे आ रही है हमारी 1। तो ग्राफ हमारा आ रहा है ऐसे। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। इससे कंक्लूजन क्या निकालेंगे? कंक्लूजन हम निकालेंगे सेक्शन ए इज बेटर देन सेक्शन बी, क्योंकि उनका एक कॉन्टिन्यूस वाला ग्राफ चल रहा है। ठीक है, तो कंक्लूजन हमारा ये रहेगा, सेक्शन ए इज बेटर देन section B. Now move on to question number 7. Question number 7 is, the runs scored by two teams A and B on the first 60 balls in a cricket match are given below. 1 to 6 में टीम ए ने 2 बनाए, टीम बी ने 5 बनाए। ये बेसिकली एक रन स्कोर बोर्ड है कि नंबर ऑफ बॉल्स में नंबर ऑफ टीम ए ने कितने बनाए, टीम बी ने कितने बनाए। अब आपका जो मेन थिंग है क्वेश्चन में यही है, आपको रिप्रेजेंट करना है इस डेटा को इन अ ग्राफ यूजिंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए यू नो दैट वी नीड क्लास mark, and in before we are going to find out what is the class mark, we need to find new class interval, because the class intervals are not continuous here, 1 to 6 and 7 to 12. सबसे पहले हम क्लास इंटरवल को निकालेंगे और क्लास इंटरवल के निकालने के बाद हम क्लास मार्क को निकालेंगे। क्लास इंटरवल न्यू निकालने के लिए वी नो दैट इसके अपर लिमिट और इसके लोअर लिमिट को हम माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय 2। 7 माइनस 6 इज 1 एंड 1 डिवाइडेड बाय 2 इज 5, 0.5। तो पहले में से 0.5 माइनस कर देते हैं और आगे वाले में 0.5 ऐड कर देते हैं। 24.5 to 30.5, 30.5 to तो ये हमारा न्यू क्लास इंटरवल आ गया। और जब ये न्यू क्लास इंटरवल आ गया तब हम क्लास मार्क निकालेंगे, विच इज वेरी सिंपल, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। Formula of class mark is यहाँ पे अपर लिमिट 6.5 है, 6.5 प्लस 0.5 is 7, 7 divided by 2 is 3.5. First class mark is 3.5, second class mark is 9.5. एक ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6 आ रहा है, तो हम इसमें 6 अगर ऐड करते चले जाएं, 9 plus 6 is 15.5, 21.5, 27.5, 33.5, 39.5, 45.5, 51.5 and last is 57.5.
क्लास मार्क हमारे पास आ गया है। न्यू CI हमारे पास जो अब किसी काम की नहीं है, अब हमारे पास सिर्फ क्लास मार्क का है काम। तो अब हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ हम टीम ए का ब्लैक पेन से बनाएंगे, टीम बी का ब्लू पेन से बनाएंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ बॉल्स, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्कोर्स। ओके, तो इस चार्ट कैसे होता है? 3.5, 9.5, 15.5, 21.5, 27.5, 33.5, 39.5। जगह कम हो रही है हमारे पास, इसको छोटे बनाने पड़ेंगे हमें। और 27.5 के बाद 33.5, देन 39.5, देन 45.5, फिर 51.5, then 57.5. Starts with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. टीम ए का ब्लैक पेन से बनाते हैं। 3.5 पे हमारी वैल्यू पहले आ रही है 2, फिर आ रही है वैल्यू हमारी 1, फिर आ रही है वैल्यू हमारी 8, फिर वैल्यू आ रही है हमारी 9, फिर आ रही है हमारी वैल्यू 4, 4 के बाद आ रही है हमारी वैल्यू 5, 5 के बाद आ रही है हमारी वैल्यू 6, 6 के बाद आ रही है हमारी वैल्यू 10, 10 के बाद वैल्यू हमारी आ रही है 6, उसके बाद आ रही है हमारी वैल्यू 2. So this is our graph for team A. 1, 2, 2 के बाद नीचे, फिर ऊपर। 2, 1, 8, 9, 4, 5, 6, 10, 6, last is 2. This is the frequency polygon of team A, not team B. 3.5 पे हमारी वैल्यू थी 5, 5 के बाद हमारी वैल्यू हो गई है 6, 6 के बाद हमारी वैल्यू हो गई है 2, 2 के बाद हमारी वैल्यू हो गई है 10, 10 के बाद हमारी वैल्यू हुई है 5, 5 के बाद हमारी वैल्यू हुई है 6, 6 के बाद हमारी वैल्यू हुई है 3, 3 के बाद हमारी वैल्यू हुई है 4, 4 के बाद हमारी वैल्यू हुई है 8, और 8 के बाद हमारी वैल्यू हुई है 10. तो हमारा इसका ग्राफ ऐसे आ रहा है। फाइव, 6, 2, 10, 5, 6, 3, 4, 8, 10. Team A black and team B blue. So this is our question number 7. Now move on to question number 8. Question number 8 is a random survey of the number of children of various age groups
playing in a park was found as follows. Age 1 to 2 years, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 10, 10 to 15 and 15 to 17. एज ये है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ये है, लेकिन आप हमें इसका हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम बनाना है मतलब हमें इसी क्लास इंटरवल को देखना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देखिए क्लास इंटरवल जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। 1 और 2 में विड्थ हमारी 1 दे रखी है, 2 और 3 में विड्थ हमारी 1 है, 3 और 5 में विड्थ हमारी 2 है, 5 और 7 में विड्थ हमारी 2 है, 7 to 10 में विड्थ हमारी 3 है एंड 10 to 15 में हमारी 5 और वापस 2। तो कॉन्टिन्यूस नहीं है। कॉन्टिन्यूस जब नहीं होता तो हिस्टोग्राम के अलावा कोई और ग्राफ नहीं बन पाता, और उसके लिए हमें लेंथ निकालने की जरूरत है। लेंथ जब हम निकालते हैं, लेंथ का फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ इनटू लोअर विड्थ। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ चिल्ड्रन। नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे 5 है, तो अगर हम सबकी एक एक करके निकालें तो 5 डिवाइडेड बाय विड्थ हमारी 1 है, मल्टीप्लाई बाय लोअर विड्थ भी हमारी 1 है, तो लेंथ हमारी क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। 3 की निकालें, 3 डिवाइडेड बाय विड्थ हमारी है 1, मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज 3। 6 डिवाइडेड बाय विड्थ हमारी 2, लोवेस्ट 1 विच इज 3। 12 डिवाइडेड बाय हमारी विड्थ 2 into 1 which is 6। 9 divided by 3 multiplied by 1 which is 3. 10 divided by 5 multiplied by 1 which is 2. 4 divided by 2 multiplied by 1 which is 2. तो लेंथ हमारी आ गई है, विड्थ हमारी है। अब हमें बनाना है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए अब हमें, ये हमारी है लेंथ, ये हमारी है विड्थ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। यहाँ पे भी हम लेंगे 1, हाईएस्ट हमारी क्या जा रही है? 6 जा रही है, और 17 तक हम वैल्यू ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो सबसे पहले एज 1 और 2 के नंबर ऑफ चिल्ड्रन 5 है, और उसका ग्राफ क्या बनेगा? उसका ग्राफ बनेगा कैसा? लेंथ हमारी 5 हो तो 1 2 3 4 5, इसको मान लेते हैं हम अपनी विड्थ और इसको मान लेते हैं हम अपनी लेंथ। ओके, तो सबसे पहला है हमारा लेंथ 5, विड्थ 1। विड्थ 1 मतलब 1 से 2 1, और हमारा ग्राफ ऐसा हो जाएगा। नाउ 2 to 3 जो है हमारी लेंथ 3 होगी और विड्थ 1, विड्थ 1 एंड लेंथ 3। नाउ 3 to 5 हमारी लेंथ 3 हो जाएगी एंड विड्थ हो जाएगी 2। लेंथ हमारी 3 एंड विड्थ हमारी 2। नाउ 5 to 7 हमारी लेंथ हो जाएगी 6 और विड्थ हो जाएगी 2। 6 हमारी लेंथ एंड विड्थ हमारी 2। 7 to 10 में हमारा लेंथ 3 एंड विड्थ 3। 10 to 15 में लेंथ 2 विड्थ 5। लेंथ हमारी 2 और विड्थ हमारी 5। 15 to 17 में लेंथ 2 एंड विड्थ 2। लेंथ हमारी 2 एंड विड्थ हमारी सो दिस इज आवर हिस्टोग्राम ऑफ दिस डेटा। क्योंकि हमारी सारी अलग अलग थी, हमें लेंथ अलग निकालनी पड़ी, विड्थ अलग निकालनी पड़ी, और उससे हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से आया है। Now moving on to question number 9. Question number 9 is 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory, and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surname was as
follow. 1 to 4 number of surnames 6, 4 to 6 30, 6 to 8 44, 8 to 12 16, 12 to 24. Draw a histogram to depict the given information. Write the class interval in which the maximum number of surnames lie. 100 सरनेम्स को रैंडमली पिक करा है एक लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी से और एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने बना दिया कैसे इंग्लिश अल्फाबेट से. फर्स्ट 4 नंबर ऑफ लेटर्स के सरनेम 6 है, 4 टू 6 के 30 है, 6 टू 8 से 44 है, 8 टू 12 से 16 है, 12 टू 20 से 4 है. अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्योंकि इनके क्लास इंटरवल्स के बीच में जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं आर नॉट सेम. इन दोनों के बीच का इंटरवल 3 है, इन दोनों का 2 है, इनका 2 है, इनका 4 है और इनका 8 है. तो इनकी विड्थ क्या है, हमारी 3 आई है, इसकी क्या है 2 है, इसकी 2 है, इसकी 4 है और इसकी 8 है. तो इसमें हिस्टोग्राम के अलावा तो कुछ नहीं बन सकता और ये लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह हमें विड्थ और लेंथ निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम हिस्टोग्राम को बना सकते हैं. तो विड्थ तो हमने निकाल ली है, लेंथ हमारी क्या होगी, लेंथ हमारी फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ इनटू लोवेस्ट विड्थ. लोवेस्ट विड्थ इसमें नंबर ऑफ लोवेस्ट विड्थ हमारी यहाँ पे 2 है, तो फर्स्ट के निकालने के लिए हम फ्रीक्वेंसी लें तो ये जाएगा 6 अपॉन हमारे विड्थ 3 इंटू 2. 3 टू ज़ा 6, 2 टू ज़ा 4. यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 विच इज 30. 44 divided by 2 into 2 which is 44. 16 divided by 4 into 2 which is 8 and 4 divided by 8 into 2 which is 1. So these are the length, these are the width, number of letters and number of surnames. Now we'll draw the histogram. This is length and this is width. लेंथ हमारी 44 तक जा रही है एंड 1 भी है, तो हम यहाँ से अगर 4 ले लें 4 8 12 16 18 20 24 28 32 36 40. नंबर ऑफ विड्थ हम 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक हमारी विड्थ जा रही है, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10 है. तो 1 to 4 विड्थ हमारी 3, लेंथ हमारी 4. लेंथ हमारी 4, विड्थ हमारी 3. 4 to 6 लेंथ हमारी 30 एंड विड्थ हमारी 2. 30 हमारा कुछ यहाँ होगा, next is 6 to 8 width 2 and length 44. Then 8 to 12 लेंथ हमारी 4 रहेगी एंड लेंथ हमारी 8 रहेगी एंड विड्थ हमारी 4 रहेगी. लेंथ विल बी आर 8 and width 8 to 12 width 4 length 8. Width 4 and length 8. And last 12 to 20 length is 1 and width is 8. So this is our histogram of this data which non-continuous class intervals.
Now second part is, this is our first part. Second part is write the class interval in which the maximum numbers of surnames lie. So class interval where the maximum number of surnames are lie is 6 to 8. So this is all about exercise 12.1, and with this I am going to end my video and end this chapter. Thanks for watching. I hope to see you soon.